On every page, write the header, date, subject, name, roll number, and section. Hopefully, all of you must have visited Moodle. In Moodle, I have uploaded all the necessary notes and video links that will help you to understand the topics better. If you get any problem related to that, please convey your message to me through WhatsApp or through mail. So in the last class, we had seen about class objects, encapsulation, abstraction, data hiding. In this class, we will continue with the object-oriented concepts. So the sixth concept is inheritance. So inheritance का मतलब क्या है? It is the process of passing attributes, that is data members, and characteristics or behavior, that is member functions, of one class to another class. तो हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था कि कोई भी क्लास हम बनाते हैं उसमें डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हम बनाते हैं. डेटा मेंबर्स को हम लोग एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, मेंबर फंक्शंस को हम लोग जो है बिहेवियर भी कहते हैं. तो ये सभी चीज़ें जो एक क्लास में हैं, वो सभी चीज़ों को हम चाहें तो दूसरे क्लास में भी इनहेरिट करके ले जा सकते हैं. तो इसका फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा होता है रीयूजेबिलिटी. रीयूजेबिलिटी के कारण हम जो है वी डोंट नीड टू रीराइट द कोड. So rewriting of the code is reduced. So that is why effort is reduced. As soon as the effort is reduced, then the cost of development also reduces. So the number of lines that we code is directly proportional to the cost of the software. So for example, if we are writing a software, if you are developing a software which needs 1 lakh lines of code, and the same software you develop using 5,000, 50,000 lines of code, then naturally the 50,000 lines of code software, the same software, will almost be in the half price, can be sold in half price compared to the same project which is requiring 1 lakh lines of code. तो जहाँ पे भी लाइन्स ऑफ कोड रिड्यूस हो जाता है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है. So that is why reusability of code is very, very important while we are developing software projects. We should not rewrite the code more often, because rewriting of the code is actually increasing the lines of code, and lines of code increase हो रहा है मतलब effort increase हो रहा है. Effort increase हो रहा है इसका मतलब cost जो है वो increase हो जाएगा. Plus एक और चीज होता है, if there are more lines of code, then the software's complexity also increases and the memory requirement also increases, which also makes the software slower, and that is why it is recommended to reduce the lines of code or to optimize the lines of code. So inheritance जो है हमको reusability को promote करता है. It promotes reusability. That's why it helps to reduce the cost. As the effort is reduced, so cost also gets reduced. So inheritance का main idea क्या है? That at least there should be 2 classes. The properties of one class will be added into the properties of the another class. Aggregate हो जाता है properties. तो जब वो aggregate होगा किसी और क्लास में, तो उसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है. So that reduces the effort but improves the productivity. तो inheritance के थ्रू हम productivity improve कर लेते हैं, as well as we are able to reduce the cost. तो इसलिए inheritance एक बहुत important, एक strong feature होता है बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स में. तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लाइड पे, उसको नोट करते जाएं, कर लीजिए नोट. मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक करके. Here the class which gets inherited, तो जो क्लास है जो रिसीव करेगा प्रॉपर्टीज,
from another class, the class which is receiving the properties is known as the child class. So the child class will receive the properties from the parent class. अब जिससे वो receive कर रहा है उसको parent class बोलेंगे, इसको base class भी बोलते हैं, और जो receive कर रहा है class वो child class कहलाएगा या तो derived class भी कहलाता है. तो child class या derived class is a class which acquires the properties of another class. और जिस क्लास से वो एक्वायर कर रहा है, जिसको सोर्स क्लास कह सकते हैं, जहां से एक्विजिशन चल रहा है, वो सोर्स क्लास जो है वो दैट बिकम्स द पेरेंट क्लास और द बेस क्लास. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यूरिंग इनहेरिटेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ड्यूरिंग इनहेरिटेंस द प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर्स ओनली, याद रखना है, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर्स ओनली गेट इनहेरिटेड इनटू द चाइल्ड क्लास. तो चाइल्ड क्लास में या डिराइव्ड क्लास में वही प्रॉपर्टीज आएंगी जो पेरेंट क्लास के अंदर में प्रोटेक्टेड या पब्लिक एक्सेस मोड में रखा है. जो प्राइवेट एक्सेस मोड में रहता है मेंबर्स, चाहे वो डेटा मेंबर हो या मेंबर फंक्शन हो, वो इनहेरिट होके नहीं आएगा. So in any case, during inheritance, private members will not get inherited into the child class, but the public and protected members will get inherited into the child. तो important जो है आइडिया है, इसको याद रखना है. इट क्रिएट्स ए हायरार्कियल स्ट्रक्चर, ऊपर पेरेंट नीचे चाइल्ड, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, इसको हायरार्कियल स्ट्रक्चर बोलते हैं. इट इम्प्लीमेंट्स रियूजेबिलिटी ऑफ कोड, ये तो हम लोग मैंने अभी बताया कि हाउ द रियूजेबिलिटी ऑफ कोड इज देयर. वी डोंट नीड टू रीराइट द इनहेरिटेड मेंबर्स. तो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस आ रहे हैं इनटू द चाइल्ड क्लास, उनको रीराइट करने की जरूरत नहीं है. स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेस इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस. C++ में स्ट्रक्चर्स को भी आप यूज कर सकते हैं इनहेरिटेंस के लिए, क्लासेस को भी यूज कर सकते हैं. और टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में आता है सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्कियल एंड हाइब्रिड. So we'll see all these things in details later, but remember that there are 5 types of inheritance structures: single, multi-level, multiple, hierarchical and hybrid. सिर्फ इतने ही हैं जो स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं. हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ये सभी का मिक्सचर हो जाता है. तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड है कि एटलीस्ट वी नीड वन पेरेंट एंड एटलीस्ट वन चाइल्ड टू एस्टैब्लिश इनहेरिटेंस. नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, इट इज पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, पॉली मतलब मल्टीपल, मॉर्फ मतलब फेसेस. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मल्टीपल फेसेस. तो इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन क्या है C++ में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में? इट इज वेरी सिंपल दैट यूजिंग फंक्शंस. पॉलीमॉर्फिज्म हम अचीव करते हैं यूजिंग फंक्शंस. जो C में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फंक्शंस, उन्हीं फंक्शंस को लेके हम जो है पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं. तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा पॉलीमॉर्फिज्म का? मल्टीपल फंक्शंस विद सेम नेम. क्योंकि फंक्शन का जो फेस है उसका नेम है, उसी से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. तो इफ देयर आर मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम, तो आपने 3 फंक्शंस बनाए, तीनों फंक्शंस का नाम f1 है. तो द स्पेस इज सेम f1. f1 जो है नेम सेम है, लेकिन उसके डेफिनेशंस अलग अलग है. ये C में अपन नहीं कर सकते, C++ में अपन इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं. So when there are multiple functions with the same name, but their definitions are different, then this particular situation will be known as polymorphism.
So it is the process of defining more than one kind of implementation of a function using the same name. अब इसमें कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम नेम तो है, ठीक है, ये तो जरूरी है, बट देर शुड बी डिफरेंट इनपुट आर्गुमेंट लिस्ट. इनपुट आर्गुमेंट लिस्ट जो है वो अलग अलग होने चाहिए, या तो उनका डेटा टाइप अलग अलग होना चाहिए. तो फंक्शन में एक होता है रिटर्न टाइप, एक होता है फंक्शन का नेम, एक होता है ब्रैकेट्स के अंदर इनपुट आर्गुमेंट लिस्ट. रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, इनपुट आर्गुमेंट लिस्ट. तो जो इनपुट आर्गुमेंट लिस्ट है दैट शुड बी डिफरेंट. Either the number of arguments should be different or the data types should be different. If the number of arguments are same, then their data types should be different. तो इनपुट आर्गुमेंट लिस्ट में चेंजेस होने चाहिए, तब जाके आप जो है फंक्शन ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं. तो what are the various ways using which we can implement polymorphism? Function overloading, constructor overloading, operator overloading, and templates. We will see all the examples of these concepts in detail later on. तो जैसे अभी मैंने बताया, ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब यही है, द नेम इज सेम एंड द डेफिनेशंस आर डिफरेंट. So we need to create multiple functions with the same name but with different input argument lists and different definitions. तो फंक्शन ओवरलोडिंग के जैसा ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होता है. कंस्ट्रक्टर ऑल्सो इज ए फंक्शन ऑफ द क्लास. ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी जो है क्लास के अंदर रख के हम एक फंक्शन बना सकते हैं ऑपरेटर के लिए. जो प्री डिफाइंड ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वगैरह, उनको भी हम एडिशनल मीनिंग दे सकते हैं बाय डिफाइनिंग फंक्शंस रिलेटेड टू देम, ऑपरेटर फंक्शंस, उनको भी ओवरलोडिंग कर सकते हैं. और हम लोग देखेंगे टेम्पलेट्स के बारे में, वेयर देर इज इट इज ए डेटा टाइप पॉलीमॉर्फिज्म, जहाँ पे हम डेटा टाइप को ही ऐसे बना देंगे कि अलग अलग डेटा टाइप अचीव कर सकें. एक ही डेफिनेशन दिया हुआ है. अब इसमें टेम्पलेट्स में डेफिनेशन एक ही दिया रहता है, लेकिन वो अलग अलग डेटा टाइप्स में अचीव किया जा सकता है, फॉर्म लिया जा सकता है. तो विल सी देम इन डिटेल्स. फिलहाल के लिए याद रखिएगा, फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड टेम्पलेट्स आर द वेज इन विच वी इंप्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म. अब पॉलीमॉर्फिज्म में दो मेन टाइप्स हैं. एक है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. अब पॉलीमॉर्फिज्म में एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी बताया था कि फंक्शन ओवरलोडिंग से ही हम अचीव करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. फंक्शन ओवरलोडिंग से ही हम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं. वी अचीव पॉलीमॉर्फिज्म थ्रू फंक्शन ओवरलोडिंग. तो जब हम फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा सी में, कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, द कंपाइलर जंप्स फ्रॉम द फंक्शन कॉलिंग टू द फंक्शन डेफिनेशन, executes the function definition and comes back to the calling area. So this process is a very common process है. आप किसी भी लैंग्वेज में अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो यही प्रोसेस फॉलो होता है कि जहाँ पे भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस पर्टिकुलर जगह से कंपाइलर जंप करता है फंक्शन डेफिनेशन की तरफ, फंक्शन डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करता है और वापस फंक्शन कॉलिंग में वापस आ जाता है, जो फंक्शन कॉलिंग के स्टेटमेंट के नेक्स्ट स्टेटमेंट में वापस आता है. तो ये जंप वाला जो प्रोसेस है ये हर जगह फॉलो होता है जहाँ पे भी फंक्शन कॉलिंग आप कर रहे हैं. तो द बाइंडिंग, अब यहाँ पे क्या होगा, द कंपाइलर नीड्स टू बाइंड द फंक्शन कॉलिंग विथ इट्स डेफिनेशन. क्योंकि कंपाइलर को पता रहना चाहिए कि कौन से फंक्शन को कौन से डेफिनेशन के साथ बाइंड करना है, क्योंकि वो बाइंडिंग जब तक नहीं करेगा तब तक वो जंप नहीं कर सकता. उसको पता नहीं चलेगा कि कौन से जगह पे जंप करके जाना है उसको, बिकॉज कॉलिंग जो एरिया होता है उसका मेमोरी एड्रेस अलग होगा और जो डेफिनेशन वाला जो एरिया है उसका मेमोरी एड्रेस अलग होगा. तो देयर हैज टू बी लिंक बिटवीन द कॉलिंग एड्रेस एंड द डेफिनेशन एड्रेस. So for that this linking process has to be done, and this linking of the calling area with the definition area
is known as binding. So the binding of a function call with its function definition, with its respective definition, is known as binding. और ये binding process जो है, the compiler can do it in two ways. One is during compile time and second is during run time. तो कंपाइल टाइम में अगर बाइंडिंग हो रही है, इसका मतलब रन होने से पहले ही, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन, द बाइंडिंग विल टेक प्लेस. All the function definition will be binded with their respective, all the function calling will be binded with their respective definitions before execution begins. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? रन टाइम बाइंडिंग जिसको बोलते हैं या डायनेमिक बाइंडिंग बोलते हैं, उसमें फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग का जो बाइंडिंग है वो रन टाइम में होता है, मतलब आफ्टर एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स. So the situation where the compiler is unable to bind the calling of function with the respective definition to perform this binding during runtime. सर आवाज नहीं आ रही. Hello, सर अटक रहा है आपकी आवाज सर. am I audible now? यस आवाज क्लियर आ रही है? यस सर. ओके, थैंक यू. सो ये जो हम बाइंडिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जब कंपाइलर को फंक्शन कॉलिंग को फंक्शन डेफिनेशन के साथ बाइंड करना रहता है ड्यूरिंग रन टाइम, जब कंपाइल टाइम में वो बाइंड नहीं कर पाता है कॉलिंग ऑफ द फंक्शन विद द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, और उसको मजबूरी हो जाती है कि वो रन टाइम में इसको बाइंड करे, तो दैट इज नोन एज रन टाइम बाइंडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं उसको. So we'll see the examples of all these in details later on. अभी कॉन्सेप्ट को थोड़ा याद रखिए. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, 8th कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट्स का, डायनेमिक बाइंडिंग. डायनेमिक बाइंडिंग जो है अभी मैंने जो समझाया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये इसको डायनेमिक बाइंडिंग बोलते हैं. पॉइंट्स नोट कर लीजिए. डायनेमिक बाइंडिंग जो है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है. इट इज रन टाइम बाइंडिंग ऑफ द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन विद इट्स रेस्पेक्टिव डेफिनेशन, और ये जो है हम अचीव करते हैं यूजिंग वर्चुअल फंक्शंस, प्योर वर्चुअल फंक्शंस, इनहेरिटेंस एंड पॉइंटर ऑफ द बेस क्लास. अब ये तीनों चीजों का क्या मतलब होता है हम डिटेल में बाद में लर्न करेंगे एंड वी विल इंप्लीमेंट देम. तो फिलहाल के लिए याद रखिएगा कि अगर डायनेमिक बाइंडिंग इंप्लीमेंट करना है तो वी नीड प्योर वर्चुअल फंक्शंस, इनहेरिटेंस एंड पॉइंटर टू द बेस क्लास. ये तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी हमको, and we'll see some examples later. So the idea of dynamic binding is very simple. Binding of function call with the respective definition during runtime is known as runtime polymorphism or dynamic binding. फिर 9th पॉइंट है मैसेज पासिंग. 9th कॉन्सेप्ट है मैसेज पासिंग. मैसेज का मतलब होता है डेटा. The meaning of message is data. When we pass this data, when we pass data between objects, then it is known as message passing. So message passing can take place between objects of the same class and as well as object of different classes. So when we are able to pass messages between objects, that is data, between objects of the same class or between objects of different classes, then it is known as message passing. So it is very simple. So what is the message that we can pass? How we can pass the message? We can pass the message using data. And how the data can be passed? The data can be passed as input argument in the functions. तो क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शंस होते हैं उनका जो इनपुट आर्गुमेंट लिस्ट है, उस आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर में हम डेटा अगर पास करते हैं तो दैट बिकम्स मैसेज पासिंग.
तो इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट्स का बहुत जरूरत पड़ता है, बिना क्लास ऑब्जेक्ट्स के मैसेज पासिंग का कोई मतलब नहीं आता। तो फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट्स, फ्रॉम यूजर टू ऑब्जेक्ट्स, फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम क्लास, फ्रॉम बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, ये सभी जो है वो मैसेज पासिंग के कैंडिडेट्स हैं। तो वी कैन पास ऑन मैसेजेस बिटवीन द यूजर एंड द ऑब्जेक्ट्स। अब एक यूजर जो है वो मैसेज कैसे पास करेगा टू द ऑब्जेक्ट? a user or a programmer can invoke the member function of the object and put the input arguments. Those input arguments become the message for the object. ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट का क्या मतलब रहेगा कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के या सेम क्लास के ऑब्जेक्ट का मेंबर फंक्शन कॉल कर रहा है, तो वो मैसेज पासिंग हो जाएगा बिटवीन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। एंड फ्रेंड फंक्शंस यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस के बीच में मैसेज पासिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे कोडिंग के थ्रू, लेकिन आइडिया जो है याद रखना है दैट मैसेज पासिंग इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, पासिंग द डेटा विद इन द ऑब्जेक्ट यूजिंग मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शंस यूज करके ही मैसेज पासिंग पॉसिबल है। ठीक है, फ्रेंड फंक्शंस यूज करके मैसेज पासिंग पॉसिबल है, मेंबर फंक्शंस यूज करके मैसेज पासिंग पॉसिबल है। So we need functions to pass on messages to the objects. So basically we are passing messages to the objects, that is we are passing data to the objects. So this is the concept of message passing. Now we come to the basic C++ program structure. यहाँ पे मैंने जो आपको लिंक दिया था लास्ट क्लास में, उस लिंक को आप लोग यूज करेंगे। या तो आपके पास इंस्टॉल्ड होना चाहिए सी टर्बो सी कंपाइलर, या तो आप ऑनलाइन जाके टर्बो सी कंपाइलर पे वर्क कर सकते हैं। तो आई विल रिकमेंड दैट यू ऑलवेज हैव शुड बी रेडी विद द टर्बो सी कंपाइलर, क्योंकि अभी सब एग्जांपल्स हम लोग टर्बो सी कंपाइलर पे करेंगे। तो सी प्लस प्लस प्रोग्राम का बेसिक बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो सी प्रोग्राम के जैसे ही होता है। सबसे पहले आएगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो हैश से जो भी चीजें आप क्रिएट करते हैं, स्टेटमेंट जो भी हैश से शुरू होता है, हैश सिंबल से जो भी स्टेटमेंट आप शुरू करेंगे, दैट दो स्टेटमेंट्स आर नोन एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये जनरली अपने प्रोग्राम के सबसे टॉप में रहता है। तो आपका प्रोग्राम आप कहाँ लिखेंगे? टेक्स्ट एडिटर पे लिखेंगे। टेक्स्ट एडिटर के टॉप में जो हैश से स्टार्ट किए हुए स्टेटमेंट्स होंगे, दो स्टेटमेंट्स विल बी नोन एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। उसके तुरंत नीचे जो भी आप डिक्लेयर करेंगे दैट विल बी ग्लोबल डिक्लेरेशंस। आप वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, क्लास, फंक्शंस कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएगा मेन फंक्शन, इंट मेन, वॉइड मेन। आपने प्रोग्राम बनाया होगा कभी सी में, तो उसमें आपको पता है कि मेन फंक्शन होता है। तो मेन फंक्शन आप बना सकते हैं। मेन फंक्शन एक बनाना है, ओनली वन मेन फंक्शन कैन बी देयर इन ए प्रोग्राम। मेन फंक्शन के नीचे में आप जो है डिक्लेरेशन, डेफिनेशंस और भी दे सकते हैं, वो लोकल डेफिनेशंस, डिक्लेरेशंस कहलाएगा। मेन फंक्शन के ऊपर में जो भी डिक्लेरेशंस दे रहे हैं वो ग्लोबल डिक्लेरेशंस कहलाएगा। मेन फंक्शन के नीचे में जो भी डिक्लेरेशंस देंगे आप आफ्टर द मेन फंक्शन, तो वो जो है लोकल डिक्लेरेशंस, डेफिनेशंस कहलाएगा, डेफिनेशंस कहलाएगा। ठीक, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को जो है हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है कि whenever we are using C++, whenever we are creating programs in C++, the compilation takes place from top to down. टॉप डाउन अप्रोच होता है कंपाइलेशन प्रोसेस का। एग्जीक्यूशन प्रोसेस का जो सीरीज है वो टॉप टू डाउन होता है हमेशा। इसीलिए आप जब भी कोई वेरिएबल यूज करना चाहते हैं, या कोई भी कांस्टेंट यूज करना चाहते हैं, या कोई भी क्लास या फंक्शंस यूज करना चाहते हैं, दोज नीड टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड। तो यूज करने से पहले उनको डिक्लेयर करना जरूरी है, उनको डिफाइन करना जरूरी है। अगर आप प्रॉपरली डिफाइन या डिक्लेयर नहीं करेंगे तो एरर्स, कंपाइलेशन एरर्स आने लगेंगे। तो विल सी हाउ इट हैपन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है C++ प्रोग्राम का। तो
जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे दैट प्रोग्राम हैज टू बी रिटन इन ए टेक्स्ट फॉर्मेट। तो आप एक टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे, या तो फिर अगर टर्बो सी कंपाइलर आपके पास है उसका एक एडिटर आपको ऑलरेडी मिला हुआ रहता है। तो मैंने जो आपको लिंक दिया था उस लिंक को अगर आप यूज करेंगे तो वो एडिटर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक, तो टर्बो सी जिन लोगों ने यूज किया उनके पास एडिटर ऑलरेडी है, वो दैट कंपाइलर इटसेल्फ प्रोवाइड्स एडिटर। तो उसको हमको सेव करना पड़ता है। तो याद रखना है, व्हेनेवर वी आर सेविंग द प्रोग्राम्स इन C++, we have to use .cpp as the extension name। C के प्रोग्राम जो है .c करके सेव करते थे, C++ के प्रोग्राम्स को .cpp करके सेव करना है। ये स्टेटमेंट्स को देखते हैं, क्या क्या स्टेटमेंट्स हम लिख सकते हैं। एग्जांपल बताया हुआ है, हैश इंक्लूड एंकल ब्रैकेट्स iostream.h। ये जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ ये टर्बो C++ का फॉर्मेट है। जो लोग GCC यूज करते हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। तो आई विल नॉट डिस्कस GCC फॉर्मेट, आई विल डिस्कस ओनली टर्बो C++ फॉर्मेट, क्योंकि मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ तो उसमें मैं टर्बो C++ यूज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल्स। तो बोरलैंड C++ या टर्बो C++ आप यूज करेंगे तो आपको यही फॉर्मेट आपको यूज करना है। हैश इंक्लूड iostream.h। अब ये जो अपन ने लिखा है, जैसे अभी मैंने बताया, हैश मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो जो भी आप हैश से शुरू करते हैं, एनी स्टेटमेंट विच स्टार्ट्स विथ हैश, ये हैश सिंबल है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो हैश इंक्लूड iostream.h जो लिखा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मतलब हम पहले से बता रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के पहले प्री प्रोसेसिंग करो, और उस प्री प्रोसेसिंग में अभी जो स्टेटमेंट लिखा है हैश इंक्लूड iostream.h, मतलब .h करके एक फाइल है, iostream.h करके एक फाइल है, इस फाइल को इंक्लूड करो मेरे प्रोग्राम में। तो द कंपाइलर विल इंक्लूड द कोड प्रेजेंट इन iostream.h इनटू आवर फाइल। हमारा फाइल क्या है, test.cpp, यहाँ लिखा हुआ है फाइल नेम इज test.cpp। तो test.cpp के अंदर में, इस कोड के अंदर में iostream.h का भी कोड इंक्लूड हो जाएगा। So we are instructing the compiler that before processing starts, include the code of iostream.h file into this particular CPP file। तो iostream.h, अब iostream.h क्या है, iostream.h जो है वो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम करके एक फाइल है। .h मतलब हेडर फाइल होता है। तो दैट हेडर फाइल कंटेन्स कोड रिलेटेड टू द फंक्शंस definitions related to इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच बोलते हैं, iostream.h का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच। तो इनपुट आउटपुट रिलेटेड सभी फंक्शंस इसमें अवेलेबल रहते हैं जो हम C++ में यूज करेंगे। इनपुट फंक्शन क्या है, जो कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं वो इनपुट फंक्शंस हो गए, और आउटपुट फंक्शंस कौन से हैं, जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट में डिस्प्ले कराने में हेल्प करते हैं, वो आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस को बिलोंग करते हैं। और जो भी हम फाइल ऑपरेशंस कर रहे हैं, फाइल में लिखते हैं, वो आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू लिखते हैं, और जो भी डेटा फाइल्स हम रीड कर सकते हैं वो इनपुट स्ट्रीम के थ्रू रीड करते हैं। तो iostream.h जो है वो मल्टीपर्पज इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लास है that helps us to read and write bytes from any input output device। Generally the input output device that we'll be using is the default input device keyboard and the default output device visual display unit। So iostream.h file will help us to use functions which will help us to communicate between these IO devices। नेक्स्ट स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करेंगे, हैश इंक्लूड के तुरंत नीचे लिखा है int a equal to 100। तो दिस डिक्लेरेशन इज ए ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है कि int a equal to 100 जो आपने लिखा है that will be available to all the functions that we declare below it as well as to all the CPP files that include our CPP file। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन जो है वो फ्रीली अवेलेबल होता है टू एवरीबडी। तो यहाँ पे जो int a equal to 100 अपन ने लिखा है that is available to the entire program। पूरे प्रोग्राम में जितने भी हम फंक्शंस बनाएंगे सभी जो है इस a को यूज कर सकते हैं। उसके नीचे अपन ने लिखा है, देखिए, क्लास कैपिटल A कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज सेमीकोलन लिखा है। ये अगेन दिस इज ए डिक्लेरेशन, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है। इसमें हम लोग ने क्लास बनाया कैपिटल A नाम से।
वी हैव डिफाइंड द क्लास, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके सेमीकोलन लगा के हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिफाइनिंग द क्लास। इस कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर में कोई कोड नहीं है, ये एम्प्टी कोड है, लेकिन हम इसमें कोडिंग कर सकते हैं। तो हियर वी हैव डिक्लेयर्ड अ क्लास एक्चुअली। तो ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है, क्यों? क्योंकि मेन के ऊपर है सब। कोई भी डिक्लेरेशन मेन फंक्शन के अगर ऊपर है और प्री प्रोसेसर के नीचे है, तो दैट एरिया इज ए ग्लोबल स्पेस एंड दैट विल बी नोन एज ग्लोबल डिक्लेरेशन। तो ये ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट है, जिसमें इंट ए 100 और क्लास ए जो है वो बना हुआ है, ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। नेक्स्ट ऑब्जर्व करेंगे, वॉइड मेन ब्रैकेट्स लिखा है, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है, उसमें एक कोड लिखा है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया है। तो वॉइड मेन मतलब रिटर्न टाइप वॉइड है, मेन इज द नेम ऑफ द फंक्शन और ब्रैकेट्स बनाया है। तो दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ द मेन फंक्शन, यहां से एग्जीक्यूशन शुरू होता है। दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का जो कर्ली ब्रैकेट और ओपन क्लोज लिखा है, दिस इज द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, और इसके अंदर जो कोड है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या कोड लिखा है, सी आउट ए, उसके बाद लिखा है ए ओ बी, कैपिटल ए स्पेस ओ बी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सी आउट ए जो लिखा है दैट इज वी आर ट्राइंग टू आउटपुट द वैल्यू ऑफ ए। सी आउट स्टेटमेंट जो है, सी आउट फंक्शन है एक्चुअली, इनबिल्ट फंक्शन है, वो आईओस्ट्रीम डॉट एक्स में है। उसको यूज करके हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट करवा रहे हैं ए का वैल्यू। ए का वैल्यू जो है हमारा डिफॉल्ट आउटपुट डिवाइस पे दिखने लगेगा, दैट इज वीडियो स्क्रीन पे दिखने लगेगा। ए का वैल्यू क्या है, देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे 100 डिक्लेयर्ड है। तो कोई भी वैल्यू को अगर यूज करना चाहते हैं डेटा को, वो उसको डिक्लेयर करना जरूरी है, डिफाइन करना जरूरी है। तो ए का वैल्यू जो है वो 100 है, यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और दूसरा स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे, द स्टेटमेंट, यहाँ पे देखिएगा सेमी कॉलन यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, मतलब सी आउट ए कंप्लीट हो गया। अब क्या लिखा है, ए ओ बी। ए ओ बी का क्या मतलब होगा कि वी आर डिक्लेयरिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए। ओ बी जो है वो एक वेरिएबल जैसे काम करेगा, जैसे ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, क्लास ए का वेरिएबल जैसे काम करेगा। तो ओ बी को डिक्लेयर करेंगे, सेमीकोलन लगाए, एक और स्टेटमेंट हो गई, ये दो स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट है सी आउट ए और दूसरा स्टेटमेंट है ए स्पेस ओ बी। तो ये जो अपन ने लिखा है, दिस इज द डेफिनेशन पार्ट ऑफ मेन फंक्शन। अब इसके नीचे ऑब्जर्व करेंगे, वॉइड टेस्ट लिखा है अगेन। अब ये जो है ये लोकल फंक्शन जैसे बन जाएगा, क्योंकि मेन के नीचे जो भी एरिया होता है वो लोकल एरिया रहता है। तो वॉइड टेस्ट लिखा है सी आउट ए से, मतलब वी आर डिफाइनिंग अनदर फंक्शन टेस्ट। तो वी आर डिफाइनिंग अनदर फंक्शन टेस्ट विच हैज द बॉडी, ये जो है कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज के नीचे डेफिनेशन है सी आउट दिस इज अ टेस्ट। तो दिस इज अ टेस्ट जो है वो डबल कोट्स में है, तो ये आउटपुट हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। This is the basic structure of C++ program, and this is how we write the C++ programs. ठीक, होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। ये सेम फॉर्मेट है, सी में जो प्रोग्रामिंग करते हैं एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट है, लेकिन इसमें वी विल ऑब्जर्व दैट वी विल बी प्रोग्रामिंग मोर विद क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो इसको रिमेंबर करना है, दिस फॉर्मेट हैज टू बी रिमेंबर्ड। So any doubts, any questions related to the topics discussed today? ठीक, होपफुली सबको आइडिया लगा होगा दैट वॉट एवर आई डिस्कस टूडे। ठीक, सो एक सेकेंड।